हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दुष्यंत फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप। और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which are there in last few competitive examinations, and these questions are also very important for your forthcoming NEET UG exam. And our part of that exam is from the physics. So let's take certain questions. So I will solve you and give you the hints how to solve them and get their answers. Then let's start with that. So your question number one, that is over here. Which of the which of the following statements are correct? You have to choose the correct statements. Let's firstly read out. First, electromagnetic wave can have wavelengths of several hundred kilometers. First statement is this. Second, high energy gamma rays travel at higher speed than a low energy one. X-rays are transverse waves. An electromagnetic wave can penetrate matter. You have to find out which of these statements, either 1, 2 or 3 or 4, whichever, means it can be more than one, which one are the correct one. So let's check this. So electromagnetic wave can have wavelength of several hundred kilometers, number one. And number two, high energy gamma rays travel higher than the energy low. X-rays are transverse and the electromagnetic waves can penetrate matter. So you have to mark according to the following codes. Means whether first, second, third is correct. First, second, third is correct. Second, third, fourth is correct. First, third and fourth is correct. First, second and fourth is correct. So actually the gamma rays are the electromagnetic waves. So they travel with speed of light. Okay. गामा रेज क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और उन सब की स्पीड जो है वो सेम होती है irrespective of their energies. So your second part, that is incorrect and all other are correct. Means first is correct, third is correct and fourth is correct. So means you are having first, third and fourth, they are correct in part number C. So question number 1, the part number C is your correct answer. Done. Question number 2. Silver has a work function. ये क्वेश्चन आपके पास आ गया ड्यूल नेचर से. Silver has a work function 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितना वर्क फंक्शन है उसका? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वर्क फंक्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में. वर्क फंक्शन आ गया जिसे हम फाई भी लिखते हैं. That is equal to 4.7 electron volts. When ultraviolet light of wavelength 100 nanometer. Ultraviolet की wavelength कितनी है? 100 nanometer. Nano means 10 raised to power 9 is incident upon it. A potential of 7.7 volts is required to stop the photoelectrons from the reaching the collector plate. So potential कितना required है हमें? 7.7 volts का. How much potential will be required to stop photoelectrons when light of wavelength 200 nanometer? So अगर lambda 100 nanometer होने की बजाय 200 nanometer होता तो ये वैल्यू कितनी होती? इस वोल्टेज की वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी होती? That we have to find out. Done. So we are having a relation. We know that hc upon lambda, that is omega naught plus E. और यहां पे E क्या है? V naught electron volts. E is equal to V naught electron volt and V naught is the stopping potential. So E किसके बराबर है? V naught electron volt और V naught क्या है? यहां पे E जो है that is equal to V naught electron volts and V naught is what? That is stopping potential. That V naught is stopping potential. तो आपको stopping potential ही तो निकालना है. ठीक है. अब लैम्डा आपके पास, तो यहां पे आपके पास क्या है? इट इज एच सी अपॉन लैम्डा. सो आपके पास h की वैल्यू क्या है?
H is your Planck's constant, 6.63 in 10 raised to power minus 34 electron volts. Lambda, you have got the value 100 nanometer for first case and 200 nanometer for the second case. Then you are having value of C. C is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second or ms minus 1. Then you are having all of the value with you. So when you have used all the values, you got the value of stopping potential V naught as 1.5 volts. ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? That is part A. So question number 2 का आंसर क्या हो गया? Part A. That is 1.5 volts. So ये आपका question number 2 था. Let's move towards the question number 3. So question number 2. Question number 3 क्या है? Consider a sample of radioactive isotope with half lifetime is capital T. So half lifetime कितना है उसका? capital T है. What fraction of it would remain after a time T by 2? Means अगर आपका हाफ लाइफ का भी हाफ टाइम हो जाता है तो आपके पास जो सैंपल आपको दिया गया है उसका कितना फ्रैक्शन आपके पास बचेगा? दैट इज योर क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? क्या दिया गया है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसका हाफ लाइफ कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 में हाफ लाइफ कितना है? T is its half life. ठीक है, सो आपको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल. फ्रैक्शन कितना? T by 2 टाइम. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. हमें पता है कि फ्रैक्शन आफ्टर n हाफ टाइम्स कितना होता है. We have already fraction after n half times. ये किसके बराबर होता है? 1/2 raised to power n. That is our question. ठीक है, और here हमारे पास क्या है? हमारे पास n कितना है? 1/2. So we got the value. So हमारे पास कितना आ गया? This implies हमारे पास ये टर्म क्या बन गई है? 1/2 की पावर 1/2 means 1/√2. You got 1/√2. So 1/√2 आपका आंसर आ गया. So what is that answer? That is question number 3. The solution will be part C. So that is part C. So question number 3 का आंसर क्या आ गया? part C आ गया. तो ये याद रखना है आपने कि फ्रैक्शन आफ्टर हैंड हाफ टाइम्स कितना होता है? 1/2 पावर n. n क्या है? नंबर ऑफ हाफ टाइम. तो हमारे पास कितना है? a 1/2 टाइम कितना? T/2 हुआ ना, तो t का कितने टाइम्स हुआ? 1/2. तो 1/2 आपने सब्स्टिट्यूट किया. 1/2 अगर पावर में हो, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव अ रूट विद अस. Now question number 4. The x component of velocity of an electron is known to be somewhere between 4.5 and 4.45 meter per second. Done. x component है velocity का, किसके बीच में है? 4.55 और 4.45 meter per second के. The minimum uncertainty in the measurement of its position is of the order of. तो आपने अनसर्टिनिटी निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है उसमें आपको अनसर्टिनिटी फाइंड करनी है. डन. वी नो द हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल. वहां हमें पता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी पोजिशन मोमेंटम जो अनसर्टिनिटी होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एच. डन. डेल्टा एक्स किसके बराबर हो गया? अप्रोक्सीमेटली एच अपॉन डेल्टा पी. और डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं एम डेल्टा मास, तो वी वेलोसिटी में चेंज होगी. ठीक है, अब हमारे पास डेल्टा एक्स किसके बराबर है? एच हमें पता है 6.6 10 raised to power minus 34. मास किसका लेना है? हमें मास लेना है आपको इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास लेना है आपने. So you are going to have 9.1 10 raised to power minus 31 kilogram. Then you are going to have what? The velocity. Velocity जो आपका पास कंपोनेंट है उसका अनसर्टेनिटी
कितनी है, उसकी अनसर्टेनिटी आपने देखनी है। आपने वहां पे यूज करना है डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, जो हमें दी गई है वेलोसिटीज, ये आपके पास दो वेलोसिटीज, ठीक है, इन दोनों के बीच में चेंज कितनी है, ठीक है, इन दोनों की चेंज निकाल दीजिए, डेल्टा वी निकाल दीजिए, एंड यू आर गोइंग टू गो हैव व्हाट, योर आंसर विल बी, सॉल्व कीजिए इसे और आपके पास आंसर बन जाएगा दैट विल बी 10 रेज टू पावर -3 मीटर पर, दैट इज एक्स कंपोनेंट है, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी उसकी पोजीशन में जो आपके पास आ गई, दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3 मीटर्स, एंड दैट इज व्हाट, पार्ट ए पार्ट आ गया भाई आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास पार्ट कौन सा आ गया, पार्ट ए आ गया। सो ए पार्ट इज योर आंसर। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 5, द रॉक सॉल्ट क्रिस्टल हैज अ स्पेसिंग। अब आपके पास क्रिस्टल का एक क्वेश्चन आ गया है कि आपके पास एक रॉक सॉल्ट है, NaCl का क्रिस्टल है, दैट हैज अ स्पेसिंग of 2.8 in 10 raised to power -10 meters. The longest wavelength of X-ray, ये X-ray diffraction का क्वेश्चन आ गया, that can be analyzed with this crystal using Bragg's diffraction S। आपने Bragg's diffraction में wavelength की वैल्यू निकालनी है, आपके पास कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5, आपको पता है कि Bragg's diffraction जब हमने निकाला था तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था एक्सप्रेशन आई थी 2d sin थीटा दैट वाज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, आपके पास 2d sin थीटा आ गया, मैक्सिमम फॉर फर्स्ट वन एंड 1 पुट कर लीजिए, ठीक है। अब आपके पास मैक्सिमम उसने कहा है, द लॉन्गेस्ट मींस मैक्सिमम sin थीटा, मैक्सिमम कितना हो जाता है 1, वैल्यू sin थीटा 1 हो जाएगी वैल्यू आपके पास। सो लैम्डा किसके बराबर आ गया, 2d के बराबर आ गया। 2 d कितना है, d हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 2.82 into 10 raised to power -10 मीटर मींस 2.82 एंगस्ट्रॉम। डन। सो इसे आप कीजिए, दैट इज गोइंग टू बी 5.64 10 raised to power -10 meters। So your answer will be the third part, the C part। So आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ गया, C part उसका आंसर आ गया 5.64 into 10 raised to power -10 meter, or simply you can say it is 5.64 angstrom। बट हमें जो दिया गया है, जिस फॉर्म में आंसर दिया गया है, हमने डायरेक्टली उसी फॉर्म में उसको सॉल्व करना है। डन। लेट्स टू मूव अबाउट लिटिल हायर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ गया है, द आयोनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरी इज 10 raised to power इज 10.39 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है कि आपके पास जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है दैट इज 10.39। हाउ फॉर एन इलेक्ट्रॉन मस्ट ट्रेवल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है टू गेन द स्पेसिफिक energy to ionize the mercury। So we know potential और electric field का क्या होता है, हमें पता है E is equal to V by D होता है। डन। तो V किसके बराबर हो गया, E into D। अब V हमारे पास क्या है, हमें सफिशिएंट क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन मस्ट ट्रेवल, हमें D की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो D किसके बराबर हो गया, V अपॉन E हो गया। V हमारे पास कितना है 10.39 और E कितना है 1.5 10 की पावर +6। सो जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, एंड दैट D विल बी, सो आंसर इज दिस, दैट इज इन द सेम फॉर्म 10.39 upon 1.5 10 raised to power 6 meter। So that is your answer। So question number 6, that is part is D। So D part is the answer for question number 6। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे, आपके पास ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दैट द क्वेश्चन इज देयर इन द नीट, दैट डजंट मीन इट इज डिफिकल्ट।
ओके आपने याद रखना है कि आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसका ये मतलब नहीं है उसमें बहुत ही मुश्किल वाला फॉर्मूला लगने वाला है. दैट इज नॉट द रीजन और दैट इज नॉट द फैक्ट ओवर देयर. Okay, so if it is there, that means that it is going to have some concept behind it, and you just need its relevant relation between the physical quantities. Done. So now question number 7 is there, so we're going to solve that one. आपके पास question number 7 आ गया है. Singly ionized isotopes of an element are having the same velocity enter a region of uniform magnetic field. The field direction is perpendicular to the direction of motion. The ion would get deflected. तो क्या क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि सिंगल आयोनाइज्ड आइसोटोप है एक एलिमेंट का, आर हैविंग द सेम वेलोसिटी, एंटर द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है. द फील्ड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन और फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है. द आयन वुड गेट डिफ्लेक्टेड. आपको बताना है कि आयन की जो डिफ्लेक्शन है वो कहां होगी. नंबर 1, ऑल ऑफ देम फॉलो पाथ्स हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके डन. तो हमें पढ़ा हुआ है, हमने लॉरेंस फोर्स का रिलेशन पढ़ा हुआ है. ऑल ऑफ देम. दूसरा, but those with more neutrons would follow the path of larger radius, but those with more neutrons would follow the path of smaller radius, but those with more neutrons would follow the helical path. तो helical path लेते हैं या larger radius के साथ मूव करता है. ये तो बहुत ही आसान है कि आपके पास जैसे जैसे आपके पास मूवमेंट होगी so electron will move to with the larger radius. जस्टिफाई करने के लिए हमने आगे ही स्टडी किया हुआ है लॉरेंस फोर्स क्यू नॉट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स. ये प्रोवाइड करता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर के. सो अगर आर आपके पास एम वी स्क्वायर बाय एफ एम है, फॉर एटम्स विद लार्जर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैव लार्जर मास. मास ज्यादा होएगा तो रेडियस बढ़ता जाएगा. सो योर आंसर विल बी द बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट. तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा सो यह रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. तो जिसके पास न्यूट्रॉन ज्यादा, न्यूट्रॉन हैवी पार्टिकल है, मास बढ़ता जाएगा, रेडियस इंक्रीज होता जाएगा. तो क्वेश्चन विल बी दिस. ठीक है, तो ये था आपका पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बोर मॉडल. बोर मॉडल का क्वेश्चन है आपके पास. The acceleration of the electron in the n is equal to 2 orbit is more than the n is equal to 1 orbit. Number 1. The angular momentum of the electron in the n is equal to 2 orbit is more than in 1 orbit. Angular momentum की बात है. The kinetic energy of the electron in n is 2 orbit is less than n 1 orbit. So आपने बताना है कि इनमें से कौन से जो आपके पार्ट्स हैं वो सेम है. फिर से वही बात क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है. क्वेश्चन नंबर 8 है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर. जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एफ सी दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. फॉर एन इज इक्वल टू, अगर एन 2 है तो एक्सेलरेशन आपके पास उसी हिसाब से हम करते जाएंगे, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर. तो फर्स्ट जो है आपके पास f इज इक्वल टू एम ए होता है. सो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है. ठीक है, तो पहला क्या है, फॉर n अगर 2 है, n अगर आपके पास पहले में क्या है, n अगर 2 है, n 2 है तो r मोर होगा, बड़ा होगा. r बड़ा होगा तो a की वैल्यू कम होगी. तो इसका मतलब है आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन विल बी लेस. तो फर्स्ट पार्ट इज रॉन्ग. तो पहला पार्ट आपका जो है वो रॉन्ग हो गया और उसके साथ आपके पास सेकेंड थर्ड आपके हो गए सही. तो ये सेकेंड थर्ड आपके पास कहां आते हैं, पार्ट सी में. सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट. सो सी पार्ट विल बी करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 9 मूव करते हैं, जल्दी से करते जाते हैं आगे. नेक्स्ट मूव करते जाते हैं. आपके पास नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट जो दैट इज फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन को याद कीजिए. साइक्लोट्रॉन, yes, the same apparatus that has 2 Ds for it. ठीक है, वही apparatus है आपके पास
तो इन अ साइक्लोट्रॉन, तो आपका ये पास ऑन होके क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास यहां आ रहा है, यहां है क्वेश्चन नंबर 9। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज पार्टिकल टू ट्रेवल थ्रू द डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। तो टाइम जो है वो रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, द पार्टिकल गेन्स एनर्जी कंटिन्यूअसली, पार्टिकल एनर्जी गेन करता रहता है। द एनर्जी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पार्टिकल सबसे क्या है कि सेकेंड जो है कंटिन्यूसली ऑर्बिट में गेन नहीं करता है, वो सिर्फ एनर्जी गेन करता है कहां पे, जो दो डीज के बीच का डिफरेंस होता है वहां पे गेन करता है ना। तो यहां पे आपका सेकंड पार्ट गलत है, आपका फर्स्ट और थर्ड सही है। सो क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज पार्ट सी, फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। डन। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास क्या आ गया, पार्ट सी, दैट फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। तो पहला और तीसरा आपके पास हो गया आंसर सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब आपने बताना है कौन सी ट्रू नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स is strongest force in nature. The net nuclear force on a nucleon well inside the nucleus. Question number, that is question number 10 over here. The net force on a nucleon well inside the nucleus is 0. The nuclear force between neutrons is same as that between the protons. जो neutrons के बीच में है वही protons के बीच में है. For any separation, the nuclear force between two protons is greater than the electrostatic force between them. बात समझ आ रही है आपके पास। सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। सो क्वेश्चन नंबर द न्यूक्लियर फोर्सेस, एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स की बात है तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बता दें कि न्यूक्लियर फोर्स आपको याद होगा, न्यूक्लियर फोर्स जब भी होती बहुत स्ट्रांग है, बट दैट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, बट इसका रेंज बहुत ही छोटा है। और कितने डिस्टेंस पे ये इंपैक्ट करती है, 10⁻⁻15, मींस ओनली 1 फॉर मी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ गया। For any separation, the nuclear force between the two protons is greater than the electrostatic force between them. So that is 10⁻⁻. Answer आ गया आपका। So 11, examine the following statements for their correctness. The energy required to remove any electron from an atom is less than the energy required to remove a nucleon. Energy इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो होती है एटम से, वो कम होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियॉन को निकालने की। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। ऑल न्यूक्लियाई हैव मासेस दैट आर लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं। भाई देखिए, उन्होंने क्वेश्चन आपके पास किया है, सेकंड पार्ट को ध्यान से, पहला पार्ट ओके है, सेकंड पार्ट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो ऑलवेज ग्रेटर होते हैं ऐसा नहीं है। न्यूक्लियॉन अगर आप 1H1 हाइड्रोजन का काम ले लीजिए तो जितने न्यूक्लियॉन्स हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। सो आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज नाउ इनकरेक्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। सो वी कैन एक्सेप्ट ऑन द जर्नलाइज्ड फॉर्म। सो हम इसे ट्रू नहीं मान सकते हैं कि कंप्लीट केस के लिए। तो आपके पास ये केस आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका पार्ट बन गया जो बी है, दैट इज नॉट करेक्ट। डन। न्यूक्लियन जो है ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये आपके पास पार्ट आ गया, ये करेक्ट नहीं है ये। तो इसके आंसर क्या आपके पास बन गया, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, बी पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 11 हैज बी पार्ट एज ए करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 following again the following statement for their correctness. Fission occurs when a uranium nucleus captures a neutron or a proton. ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को जब वो कैप्चर करते हैं तब फिशन होता है। फिशन इज accompanied by the release of neutron and gamma rays. क्या ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन और गामा रेज के रिलीज पे फिशन डिपेंड करता है? About 200 mega electron volt is released in fission of a uranium. Fission chain reaction is self-sustaining in natural uranium. So question number 12 आ गया, fission occur when the uranium atom captures neutron and not proton. So first तो पहले ही रॉन्ग हो गया, फिशन ऐसा कभी नहीं होता यूरेनियम को क्या कैप्चर करने से, तो पहला हो गया रॉन्ग।
सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो आपके करेक्ट आंसर्स हैं। तो देखिए किस में है करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास आ गया बी पार्ट आपका आ गया, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट वन। ठीक है, सो ये आंसर आपके पास आ गया जो मोस्ट अप्रोप्रिएट था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर? कौन सा है पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर? भाई इलेक्ट्रॉन एंड होल? नो। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? नो। एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन? यस। हमने ये एनिलेशन में पढ़ा है, चार्ज के क्वांटाई कंजर्वेशन में हमने पढ़ा है। 13 का सी पार्ट आपके पास आ गया, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम। तो क्वेश्चन 14 क्या कहता है? इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, हमारे पास क्योंकि न्यूट्रल था वो इनर्शियल फ्रेम में और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में सेम होता है। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम। किसमें? इन ऑल रेफरेंस फ्रेम्स, नंबर 1, in all reference frames moving constant velocity, in all reference frame moving at constant acceleration, in reference frame rotating with constant angular velocity। ध्यान से पढ़िए इसे, फिर से पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर से इसे पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी आपके पास आ गया कि मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है मींस नॉन एक्सेलरेटेड है, तो ये आपके पास केस आ गया 14 का कि लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑन इनर्शियल फ्रेम्स। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स जो होते हैं उनमें वेलोसिटी जो होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। डन। सो क्वेश्चन नंबर 15, which of the following provides experimental evidence that electrons act as a charge carrier in metallic conductor? कौन सा ऐसा प्रोवाइड करता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कि इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है चार्ज कैरियर? फर्स्ट, थर्मोआयनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक तो नहीं बताता है, थर्मोआयनिक भी नहीं बताता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैथमेटिकल हमें देता है, हमें कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्ट करने में कैरियर का काम करते हैं। नन ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द पार्टिसिपेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज इन द metal. So your answer of the 15 will be D, कि none of the above is the answer. ठीक है, that will be answer. Choose the correct statement. Neutrons do not interact with matter. A free neutron. करेक्ट करना है आपने, चेक करना है आपने करेक्ट। Neutron do not interact with matter. A free neutron is stable as free proton. E by m ratio is independent of speed. Charge transfer from one body to another cannot take place without mass transfer. तो 16 का डी, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उनके साथ उनका मास भी ट्रांसफर होता है। तो 16 का आंसर आपके पास ये आ गया, 16 का आंसर आ गया फिर से अगेन डी। डन। क्वेश्चन नंबर 17, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करते हैं, पढ़ा हुआ है हमने, किस तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह, एब्सोल्यूट जीरो। और इलेक्ट्रॉन्स आर इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट, क्यों करते हैं? क्योंकि वो सारे के सारे किस में होते हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे, तो मूवमेंट नहीं करना चाहते, दे कैन नॉट मूव फ्रीली, उनके पास एक्साइटेड एनर्जी नहीं होती है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट ए आ गया कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। भाई जीरो पे करते हैं इंसुलेटर पे, और जैसे जैसे उनका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे पहुंचता है, सो दे गेट द कंडक्टिविटी इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर, सो बन जाते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है। The current gain alpha of transistor in common base is 0.995. 0.995 है भाई, बीटा पढ़ा हुआ है आपने, वही बीटा होता है करंट गेन, दैट इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है, वही आपने बीटा आपने निकालना है कॉमन एमिटर मोड का, कॉमन बेस का आपको दिया गया है, और रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। तो दैट इज 0.995, 1 माइनस 0.995, और बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 199, दैट इज राउंड अबाउट 200। सो बीटा क्या किसमें,
कॉमन एमिटर में बीटा की वैल्यू आपकी जो आ गई, गेन की वैल्यू हो गई 200 और यही वैल्यू किस में थी, कॉमन बेस में 0.995। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 18 का क्वेश्चन नंबर आंसर कितना आ गया, सी आ गया। चलिए 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप ध्यान से देखिए। कंसीडर आ 2 पॉइंट, क्या कंसीडर करना है आपने, कंसीडर करना है 2 पॉइंट, 2 इनपुट एंड गेट। आपके पास ध्यान से देखिए कौन सा गेट है, ये एंड गेट है भाई। अब एंड गेट आपके पास है तो अब आपने देखना है एंड गेट की इनपुट है ए बी और आउटपुट है सी। ट्रुथ टेबल गिवन हियर, करेक्ट वन आर। आपने देखना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको पता है कि आपके पास a डॉट बी इज इक्वल टू सी, ये इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है, a डॉट बी इज इक्वल टू सी। और ये किस किस केस में सही है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन 0.1 इज इक्वल टू 0, ओके है। सेकेंड वन 1.0 इज इक्वल टू 0, ओके है। थर्ड वन 1.1 इज इक्वल टू 1, ओके है। लास्ट वन 0.0 दैट शुड बी 0 बट नॉट इक्वल टू 1, तो लास्ट वाली हो गई आपकी इनकरेक्ट। लास्ट वाली हो गई इनकरेक्ट, तो पहला दूसरा तीसरा हो गए करेक्ट। तो 19 का आंसर क्या आ गया आपके पास, 19 का आंसर आ गया आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए करेक्ट। तो 19 का आंसर आ गया सी पार्ट। तो आपके पास आंसर कितना बन गए, सी पार्ट आ गया। डन। तो ये था भाई आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास आ गया है, आर ट्रू। आपने देखना है कौन कौन सा ट्रू है भाई, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, presence of element in sun's atmosphere discovered from the emitted bright lines in solar spectrum। हमें कैसा पता चला कि सन में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी प्रेजेंस का पता हमें कहां से चला है भाई, कहां से पता चला, सोलर स्पेक्ट्रम से। दूसरा बाल्मर सीरीज, एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड इक्वली इन एब्जॉर्प्शन एंड emission। फ्लोरोसेंस always produce light of longer wavelengths than the incident light। So question number 20, the energy of emitted photons in fluorescence is less than the incident photon, this increases the wavelength। So last third आपका आ गया। So question number 20 का पार्ट आ गया बी, क्योंकि सिर्फ आपके पास थर्ड पार्ट जो है वो करेक्ट है। थर्ड पार्ट मीन्स सिर्फ ये ब्राइट लाइंस का हमें ये गलत हो गया। बाल्मर सीरीज जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन ऑब्जर्व्ड इक्वली इन अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन नहीं होती, ठीक है। तो थर्ड में हमारे पास इसीलिए है ये, तो आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। डन। अगला देखिए, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट both kinetic and potential energy increases, number 1। number 2, both kinetic and potential decreases। number 3, potential increases, kinetic decreases। D, potential decreases, kinetic increases। तो भाई जब हमारे पास आउटर ऑर्बिट में वेलोसिटी इज लेस एंड सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, द पोटेंशियल एनर्जी बिकम लेस नेगेटिव सो इट इंक्रीजेस। सो 21 में क्या है, तो आपके पास क्या आ गया 21, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। भाई काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट वो कम नेगेटिव हो जाती है। वो क्या हो जाती है, कम नेगेटिव, लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मींस मोर पॉजिटिव, मींस दैट इज गोइंग टू बी द इंक्रीज पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 यू हैव अ सी पार्ट एज योर आंसर, ये आ गया सी पार्ट। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर फॉल्स। आपने बताना है फॉल्स कौन सी। पहली स्टेटमेंट, ऑल एटम्स कंटेन अ कॉमन पार्टिकल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड। आपके पास क्या आ गया कि आपके पास जो एटम्स थे यहां पे आपके पास कुछ मिसिंग है कि ये चीज किसने आपने रिप्रेजेंट की थी, लॉर्ड रदरफोर्ड ने, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड रदरफोर्ड। पहला आ गया, देखते जाते हैं कौन कौन है। द वर्क ऑन विच Einstein was awarded that was theory of relativity। Second, the occurrence of nuclear fission was first observed by Enrico Fermi। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास क्या है, आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है
एनरिको फर्मी ने हमें अकरेंस ऑफ न्यूक्लियर फिशन नहीं दिया था, आइंस्टाइन को रिलेटिविटी पे नहीं मिला था, और कॉमन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड ने स्टैब्लिश नहीं किया था। ध्यान रखिए, सोचिए कौन से क्वेश्चन, किन किन पॉइंट्स का इनके आंसर्स क्या हैं, बट ये इनके आंसर्स नहीं है। तो ऑल द पार्ट्स, ऑल द स्टेटमेंट्स, दे आर, you're wrong, they are wrong. So your 22 has the answer D. That 1 2 3 they are all wrong. So D part is the answer over here. ठीक है। सो अगले जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, ये 3-4 क्वेश्चन आपके पास जो हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप इसे सॉल्व किए करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, गेट मी नो अबाउट दैट। आपकी स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट है, एज वेल एज देयर इज अ कॉर्नर फॉर द नीट एंड देयर इज ऑल्सो एन ईमेल। अगर आपको और किसी चीज से डायरेक्टली आपने किसी टॉपिक पे स्टडी करना है, गेट मी नो अबाउट दैट। माई ईमेल इज विद यू, दैट इज ऑन द स्क्रीन, दैट इज वेरी सिंपल, dushant3186 at the gmail.com. So we can study even on, I am also floating certain Skype groups over there, so we can have the online classes, online facts clearance over there. So get to me, but please share and subscribe this channel, Dr. Dushyant's physics classes. Done? Thank you very much. Have a wonderful time ahead. Enjoy. I am again going to have certain other lectures on the NEET. So NEET के अब lectures हम regular होते रहेंगे. So be prepared for that. Share and subscribe to have a good audience. Thank you.